Do you want to learn English? Subscribe to ESL classes. Good morning, students. Today I will teach you the story The Three Questions, which is written by Leo Tolstoy. This story is about a king who wants to know the answers of three questions in order to run his kingdom properly. First, he wanted to know the answers from his countrymen, but no one could satisfy him with the answers. At last, he disguised himself as a common man and went to a famous hermit in the forest, where he got all his answers through self-realization. So let's start the story. So the king announced throughout his kingdom that he would give a great reward to one who would answer the three questions. So what were the three questions? The first question was, what is the right time to begin everything? किसी चीज को शुरू करने का सही समय क्या होता है? The second question was, right people to listen. कौन से ऐसे लोग हैं जिनको हम सुने, जिनको हम फॉलो करें? The most important thing to do. और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग क्या है जिसको पहले किया जाना चाहिए? ठीक है? So when he announced that he will give an award to one who will give three answers. So listening this, many countrymen came and they gave answers differently. One of them said, to know the right time for every action, one must draw up a table of days, month and year and must follow it. Others said that it's impossible to decide beforehand the right time for any action. Others advised him to have a council of wise men who would help him to fix the proper time for everything. But many of them opposed and said that everything cannot be laid before a council. It's only magician who knows it. तो ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद बहुत सारे कंट्रीमैन आते हैं अपने अपने आंसर के साथ. कुछ बोलते हैं कि किसी भी चीज़ के राइट टाइम को जानने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? एक स्केड्यूल बनाना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए. ठीक है, उसमें डेज हो, मंथ हो, ईयर हो और उसको हमको उसी अनुसार चलना चाहिए, एक रूटीन बना करके, एक टाइम टेबल बना करके. तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हम पहले ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि किस एक्शन के लिए राइट टाइम क्या है. कुछ लोगों ने कहा कि एक काउंसिल होना चाहिए जिसमें वाइज मैन हो जो राजा को, किंग को सजेस्ट करें कि उन्हें क्या करना चाहिए. तो फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये भी सही नहीं है क्योंकि हर चीज को काउंसिल के सामने लाया नहीं जा सकता है. सो व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? द सेकंड क्वेश्चन वाज राइट पीपल टू लिसन. वो कौन से लोग हैं जिनको हमको सुनना चाहिए या फॉलो करना चाहिए? The answers of second question were also various. Some said counselors, others said priests, others said doctors, and some said warriors are the most important people to listen. तो इस तरह से हम देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन का भी आंसर सबने सही नहीं दिया, सबका अलग अलग ओपिनियन था. कुछ ने कहा कि काउंसलर वो लोग होते हैं जिनको हमको फॉलो करना चाहिए. कुछ ने कहा कि प्रीस्ट जो प्रीच करते हैं, जो उपदेश देते हैं, उनको सुनना चाहिए. तो कुछ ने कहा कि डॉक्टर्स को हमको फॉलो करना चाहिए. तो कुछ ने कहा कि वॉरियर्स को फॉलो करना चाहिए. थर्ड क्वेश्चन जो था वो था द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू. वो कौन सा एक्शन है जो हमको सबसे पहले करना चाहिए? ठीक है. इन द सेम वे आंसर्स ऑफ थर्ड क्वेश्चन वर ऑल्सो डिफरेंट. सम सेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन वाज साइंस. अदर सेड it is skill in warfare. Many said no, it's worship. थर्ड क्वेश्चन के आंसर में कुछ ने कहा कि सबसे अच्छा ऑक्यूपेशन है साइंस. ठीक है. तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, जो युद्ध में जो स्किल होता है उसको सीखना ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है. तो कुछ लोगों ने कहा कि सबसे पहले हमको गॉड का
वर्शिप करना चाहिए। So in this way, no one could give the proper answer. So now the king got confused. Finally, no one got the reward. And now the king decides to meet a hermit who was very wise and popular to know the answer of his question. The hermit lived in a wood and never quitted that place. He only received common people. So the king put on simple cloth, and before reaching his cell, he got off from his horse and left his bodyguard also, so that he may appear a common man. So इस तरह से हम देखते हैं कि आंसर्स कोई भी अच्छे नहीं थे, कोई भी प्रॉपर नहीं थे, कोई भी आंसर ऐसे नहीं थे जो राजा को सेटिस्फाई कर पाए। और राजा अब डिसाइड करते हैं कि मुझे अब जाना चाहिए एक हर्मिट के पास। हर्मिट का मतलब होता है सेज, साधु, ठीक है, जो कि बहुत वाइज था और वो फॉरेस्ट में रहता था। वो उस प्लेस में हमेशा रहता था। क्विटेड का मतलब था छोड़ना, उस प्लेस को उसने कभी छोड़ा नहीं था, ठीक है। और उसके साथ ये बात थी कि वो हमेशा कॉमन लोगों को ही अटेंड करता था। तो इस पर्पज से राजा क्या करते हैं कि कॉमन जो है ना ड्रेसेस पहनते हैं, और उसके हट के पास पहुंचने के पहले ही डिसमाउंटेड फ्रॉम हिज हॉर्स, अपने हॉर्स से वो उतर जाते हैं ताकि वो राजा ना लगे, एक कॉमन मैन लग पाए। When the king approached him, the hermit was digging the ground in front of his hut. Seeing him, the hermit greeted him and kept on digging. The hermit was frail. Each time he struck his spade into the ground, he breathed heavily. The king said that he had come to him to ask 3 questions, and repeated the question. The hermit heard but did not answer any of his question. Now the king said, "You are tired. Let me work for you." The hermit thanked him and gave the spade to the king and sat down on the ground. While digging, the king again asked the same question, and again he did not get any answer. Now hermit asked him to take a rest and let him work for a while. So जब राजा हर्मिट के कुटिया में पहुंचता है तो देखता है कि हर्मिट जो है वो अपने घर के सामने, हट के सामने एक ग्राउंड है जिसको खोद रहे हैं, ठीक है। देखने में वो बहुत वीक लगे। किंग ने कहा कि मैं आपके पास आया हूँ 3 क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए, और वो फिर क्वेश्चन को बताते हैं। हर्मिट जो है वो सारे क्वेश्चन को सुनते हैं लेकिन किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं, ठीक है। किंग जो है कुछ देर वेट करते हैं, फिर बोलते हैं हर्मिट को कि चूंकि आप बहुत थक गए हैं, लाइए मैं आपके लिए ये काम करता हूँ। अब हर्मिट क्या करता है कि वो अपने स्पेड को दे देता है, ठीक है आप ये काम करो, और वो ग्राउंड पे बैठ जाता है। बीच फिर से वो क्वेश्चन रिपीट करते हैं लेकिन फिर से उनको कोई आंसर नहीं मिलता।